Hello everyone, welcome back in the physics class. I welcomes you on this online digital platform of Prince Eduhub. So my dear students, in the last class we discussed about the Coulomb law. This one is the very most important heading, and today we will discuss the Coulomb law in detail and we'll do numerical based on the Coulomb law. So let's start. Our heading is Coulomb law. So heading is Coulomb law. Coulomb's law. What is the Coulomb's law? In the previous class, we discussed about the Coulomb's law. First of all, the scientist Coulomb proposed a law that when 2 point charges Q1, Q2 separated by a distance r, then force of attraction and force of repulsion acts between charges. This force acting between charges is known as electrostatic force. So in the last class we discussed that the electrostatic force may be repulsive, the electrostatic force may be attractive. It will completely depend on that the Q1 and Q2 have the same signs or the Q1 and Q2 has opposite signs. Clear beta? So again I would like to recall that suppose that 2 point charges Q1, Q2 separated by R, तो चार्ज Q1 Q2 है और सेपरेशन कितना है बेटा R है, तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ही कौन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम फोर्स होगा. सपोज दैट Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो कूलॉम फोर्स है दैट इज द F. ये जो फोर्स है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2. So equation first, this force acting between charges is inversely proportional to r square. Equation number second beta, yes or no? Clear? So from equation first and second, from equation first and second, what we can say that F is directly proportional to Q1 Q2 inversely proportional to r square, and when I remove this proportionality sign I have to put equal sign, and with the equal sign I have to put a constant. तो इस equal sign के साथ में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? Constant K Q1 Q2 upon r square. Here K is the constant. K is the constant. क्लियर बेटा? चले अब हम बात करते हैं कि K कौन है? कांस्टेंट है. Who is the Q1? Q1 is the magnitude of first charge, Q2 is the magnitude of second charge, and R is the separation between Q1 and Q2. क्लियर बेटा? चलिए फिर अपन बात की थी दिस फोर्स F equals to K Q1 Q2 upon R square. This force may be attractive and this force may be repulsive. This force may be attractive and this force may be repulsive. It will depend on that Q1 and Q2 have same sign. It will be repulsive. अगर Q1 Q2 दोनों ही या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा. एंड Q1 Q2 हैव ऑपोजिट नेचर या अपोजिट साइंस, देन इट विल बी अट्रैक्टिव नेचर. तो इसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा. याद कीजिए अपने प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल लिया था. मैं एक एग्जांपल आपको और यहां पर देखकर एक्सप्लेन करता हूं. Suppose that I have 2 point charges Q1 is equals to 2 coulomb and Q2 is 4 coulomb separated by 2 meter. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बेटा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर.
हु इज द के इज द कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी होती है बेटा 9 इंटू 10⁻9। देन एफ इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻9। हु इज द Q1 2, Q2 4, अपन आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 4 कैंसिल आउट, 9 2 जा 18 इंटू 10⁻9 न्यूटन। कितना फोर्स लगा बेटा 18 इंटू 10⁻9 न्यूटन। यहां पर आप देखिए सेम मैं यूज कर रहा हूं Q1 इक्वल्स टू 2 कूलम and Q2 is equals to -4 coulomb. But when I use formula, then Q1 will be 2 coulomb, Q2 will be 4 coulomb. I will not put -4. I have to put +4 because Q2 is the magnitude of second charge. बेटा second charge का magnitude वैल्यू कितनी है 4 है, तो मुझे इस फॉर्मूले में पुट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगेन द रिजल्ट विल बी द सेम 18 इंटू 10⁻9 न्यूटन। देखिए मैग्नीट्यूड फोर्स का दोनों केस में सेम आ रहा है, बस ये जो फोर्स है इसका नेचर होगा रिपल्सिव और इसका नेचर कैसा होगा अट्रैक्शन, मींस बोथ चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल इन दिस केस द बोथ चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। आई बात समझ में बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। तो अपने कहा कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट के साथ में एक बात और ऐड कर लीजिए, पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस मींस द चार्जेस शुड बी स्टेशनरी, द चार्जेस शुड बी इन रेस्ट कंडीशन, द चार्ज शुड नॉट मूव, द चार्ज शुड नॉट मूव। इफ चार्ज इज इन मूविंग कंडीशन द कूलॉम्स लॉ विल नॉट बी वैलिड फॉर ऑल दैट चार्जेस। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कूलॉम लॉ, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कूलॉम लॉ कि कूलॉम लॉ सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर द मूविंग चार्जेस। क्लियर। तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर K is the constant and its value is 9 into 10⁻9। अबे वैल्यू कहां से है ये देखिए बेटा, जो K होता है K इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट नहीं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट has value 8.85 into 10⁻⁻12। अभी अपन इनकी के की और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स भी लिखेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है ये भी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले समझिए बेटा के इक्वल्स टू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। ये वैल्यू आई कहां से बेटा, के का फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वी ऑल नो दैट 4 इज द 4 and pi is the 3.14 or 22/7 epsilon naught. This epsilon naught is called permittivity of, this epsilon naught is known as permittivity of vacuum, permittivity of vacuum. Epsilon naught is called permittivity of vacuum. अब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है ये बाद में अपन देखते हैं, पहले इस पर आइए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब मैं के फॉर्मूले में के इक्वल्स टू 1/4 पाई 3.4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पुट करता हूं तो के की जो ऑलमोस्ट वैल्यू आती है दैट इज द 9 इंटू 10⁻9। क्लियर है बेटा। और ये कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो पेपर में गिवन होती है, सो नो नीड टू मेमोराइज दिस वन, लेकिन प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको वैसे ये याद रखनी पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो बार बार आपके सामने वैल्यू नहीं होगी, सो आई सजेस्ट यू प्लीज रिमेंबर दिस वन। तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10⁻9 और आई कैसे मैं बता दिया। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या है। तो इस एप्सिलॉन नोट से आने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये जो कूलॉम फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन होता है बेटा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स कहते हैं। ये जो कूलॉम फोर्स है, चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, दिस फोर्स
डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अब ये डिपेंड कैसे करता है, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझिए बेटा, और वहीं से क्लियर होगा व्हाट इज द मीन बाय परमिटिविटी, व्हाट इज द परमिटिविटी, what is the permittivity, and how this Coulomb force, how this electrostatic force depends on the medium. So the next heading is dependence of medium, dependence of medium. We know that the Coulomb force या electrostatic force the electrostatic force electric force या electrostatic force acting between charges depends on medium. फील्ड बिटवीन चार्जेस बोलो, चाहे चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं तो वो बोलो, डिपेंड्स ऑन मीडियम, इतना आप कह दीजिए आप इसको। अब यहां से अपन क्लियर करते हैं इसको कि कैसे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं आपको दो केस लेके बताता हूं बेटा, बड़े ध्यान से समझना है इनको। सबसे पहले मैं केस लेता हूं किसका, वैक्यूम का। किसका केस लेता हूं, वैक्यूम का। इट मीन्स आई हैव टू चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R। मैं अगर केस सबसे पहला केस अगर वैक्यूम का ले रहा हूं, उसका मतलब जो Q1 Q2 जो दोनों चार्जेस है वो कहां पर रखे हैं बेटा, वैक्यूम में रखे हैं। वैक्यूम में रखे इसका मतलब हुआ कि दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो कैसा है, वैक्यूम। अब एक बात आप मेरी सुनिए, बड़े ध्यान से समझना, हर मीडियम की खुद की एक अपनी परमिटिविटी होती है। Every medium has its own permittivity. Every medium has its own permittivity. So every medium has its own permittivity. तो हर मीडियम के पास में खुद की अपनी एक परमिटिविटी होती है, जो वैक्यूम की परमिटिविटी। अब बात को ध्यान से सुनना, हर मीडियम के पास में अपनी एक परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी होती क्या है ये बाद की बात है, लेकिन पहले से पहले एक चीज समझिए आप, हर मीडियम के पास में अपनी खुद की एक परमिटिविटी होती है। वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है उसको तो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट से। एंड द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। इस चैप्टर में हम जितने भी मीडियम्स की बात करेंगे, कोई भी मीडियम हो, उन सारे मीडियम्स में जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जिसकी परमिटिविटी की वैल्यू, जिसकी परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा हो जाए। हर मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से कम ही होगी। सो एप्सिलॉन नॉट हैज द लीस्ट और द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इससे कम परमिटिविटी किसी भी मीडियम की नहीं हो सकती। सबसे कम परमिटिविटी जिस मीडियम की होती है वो किसकी होती है, वैक्यूम की है। यहां फिजिक्स में आप वैक्यूम और एयर दोनों को इक्विवेलेंट मानते हैं, ऑलमोस्ट हम सेम मानते हैं। देखिए जैसे आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि वैक्यूम तो वो होता है जहां एयर का एक भी पार्टिकल ना हो, बिल्कुल एयर एग्जिस्ट ना करे, और एयर मतलब जहां पर एयर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो। तो एयर और वैक्यूम कैसे हुए, लेकिन फिजिक्स में आप एनसीईआरटी में देखिए, एक चीज मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, वहां से और ज्यादा क्लियर होगा। फिजिक्स में एयर और वैक्यूम दोनों को ऑलमोस्ट कैसा माना गया, सेम माना गया। तो एयर बोले चाहे वैक्यूम बोले, यू हैव टू अज्यूम दैट बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। चलिए, और एप्सिलॉन किसकी परमिटिविटी है, मीडियम की है। तो सारे मीडियम अलग अलग है,
वाटर है, ग्लिसरीन है, नहीं है, कोई भी मीडियम हो आपके पास में, हर मीडियम अलग अलग है तो सारे मीडियम्स की परमिटिविटी एक अलग अलग होगी। चलिए भैया, अगर ये वैक्यूम में रखें इसका मतलब इसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है। तो वैक्यूम में दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R, और वैक्यूम है, मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, इसका मतलब आप समझ गए क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एफ नोट से, एफ नोट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बेटा के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए के फॉर्मूले में 4 बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, एप्सिलॉन नॉट मींस ये कहां पर रखे, वैक्यूम में रखे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहां पर, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। क्लियर बेटा, चले नाउ अब मैंने दोनों चार्जेस को उठाकर किसी मीडियम में रख दिया, मैं नाम नहीं ले रहा किसी मीडियम का, कोई भी मीडियम हो सकता है, जनरल बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R, और दोनों के बीच में मैंने कोई मीडियम फिल कर दिया, मीडियम फिल किया, जो भी मैंने मीडियम फिल किया उसकी कोई ना कोई तो परमिटिविटी होगी। सपोज दैट द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज एप्सिलॉन। तो बेटा जब मीडियम में मैंने चार्जेस को रखा तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट यहां के क्या होगा, ये मीडियम का है, FM मीडियम का फोर्स, मीडियम में लगने वाला फोर्स, FM इक्वल टू के कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। बेटा एप्सिलॉन नोट मत लिख देना, एप्सिलॉन नोट लिखा है इसका मतलब मीडियम कैसा है, वैक्यूम है, और एप्सिलॉन लिखा है इसका मतलब कोई एक जनरल मीडियम होगा, और जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी अपन आगे बात कर लेंगे, उसकी निकाल के दिखाएंगे, वो उसकी जब क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन भी करूंगा, वहां पर वैल्यू गिवन होगी आपको, ठीक है बेटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैंने फॉर्मूले में के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नोट किसके एप्सिलॉन पुट कर दिया, इसका मतलब समझ जाओ आप किसकी बात करोगे, चार्जेस कहां रखे हैं, किसी कोई एक मीडियम में रखे हैं, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, FM अपॉन F नोट, सेकंड डिवाइड फर्स्ट कर रहा हूं मैं, FM अपॉन F नोट इज इक्वल टू, बेटा FM कितना है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बेटा Q1 टू Q2 कैंसिल आउट, 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर टू R स्क्वायर कैंसिल आउट, सिर्फ कौन बचा यहां पर, बड़े गौर से देखिए आप, कौन बचा, कौन बचा यहां पर, यहां एप्सिलॉन बचा और यहां पर एप्सिलॉन नॉट बचा। बेटा ये एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो FM अपॉन F नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। आ गया बेटा, चलिए नेक्स्ट बढ़िया, तो क्या रिजल्ट मिला, FM अपॉन F नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। पूरे को उल्टा कीजिए आप, F नॉट अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये कौन है, एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन कौन है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दिस रेशियो इज कॉल्ड एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो बेटा एप्सिलॉन R कौन है, रिलेटिव परमिटिविटी है। कैसे निकाला रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो उसे अपन क्या कहते हैं, एप्सिलॉन R कहते हैं। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, एप्सिलॉन R इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आपने कहा यह कैसे हुआ, ऑलवेज, क्या कभी कम हो ही नहीं सकता, जी नहीं, एप्सिलॉन R की वैल्यू
विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऐसा कैसे हुआ? आइए एक पॉइंट पुराने वाला रिकॉल करवाता हूं। मैंने कहा है कि जितने भी मीडियम है, सारे मीडियम्स में वैक्यूम की जो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन नॉट होगी, उससे कम वैल्यू किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जितने भी मीडियम होंगे सबकी परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा ही होगी। इट मींस एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा ही होगी। ये मीडियम की है, ये वैक्यूम की है, वैक्यूम वाली से तो किसी भी मीडियम की ज्यादा ही होगी। ज्यादा अपॉन कम, रेशो देखिए, मोर अपॉन लेस, 5/4, मोर अपॉन लेस, वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ऑब्वियस सी बात है यार, 5/4 करोगे द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही क्या करो, एप्सिलॉन आर करो, तो एप्सिलॉन आर क्या आएगा, हमेशा एक से ज्यादा आएगा। तो बेटा एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। सो एफ एम, देखो एफ एम को इधर ले जा रहा हूं, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। इसको देखकर कुछ पता चल रहा है क्या आपको? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। क्या मतलब इसका? एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर, मतलब हुआ कि मीडियम का फोर्स वैक्यूम के फोर्स से कितना कम होगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स द फोर्स ऑफ मीडियम इज एप्सिलॉन आर टाइम्स लेस देन फोर्स ऑफ वैक्यूम। मीडियम में लगने वाला फोर्स, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, कौन सा फोर्स? मीडियम वाला फोर्स। मीडियम का फोर्स वैक्यूम के फोर्स से कितना होगा? एप्सिलॉन आर टाइम कम होगा। एंड हु इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। सो दिस इज नॉट समटाइम्स, दिस इज ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज। तो यहां से देखिए बेटा, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम, या एफ एम इज ऑलवेज लेस देन एफ नॉट। यस और नो? तो मीडियम का फोर्स हमेशा ही वैक्यूम से कम होगा, मीडियम का फोर्स हमेशा ही वैक्यूम से कम होगा। क्यों कम होगा बेटा? ये देख लो वापस यहां से, और अच्छे से बता देता हूं मैं। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, मतलब एफ नॉट अपॉन एफ एम इज ग्रेटर देन 1, तो एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एम। ये लो, आगे बात समझ में। तो मीडियम का जो फोर्स होगा वो हमेशा ही वैक्यूम के फोर्स से क्या होगा बेटा? कम ही होगा, ज्यादा कभी भी हो ही नहीं सकता। चलिए मैं एक एग्जांपल इस पर आपको करवाता हूं। एग्जांपल देखिए, छोटा सा एग्जांपल। सपोज दैट, लेट दैट two charges are placed in vacuum, then force between charges is 120 Newton. Let that two charges are placed in vacuum, then force between charges is 120 Newton. Now they are placed in medium. Now they are placed in medium, या मैं नाम ही बोल देता हूं सीधा मीडियम का। They are placed in medium, they are placed in water. Find force, और ब्रैकेट में लिख रखा एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 80। एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर इज 80। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, अगला साफ साफ बोल रहा है। तो देखो बेटा, जनरल सी बात है, इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे एक बात समझ में आई कि पहले दो कोई चार्ज होंगे, कोई भी होंगे, Q1 Q2 को दो चार्ज थे, उनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन था। वो दोनों चार्ज कहाँ पर रखे हुए थे? वैक्यूम में रखे हुए थे। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वैक्यूम के फोर्स को एफ नोट करो। एफ नोट कितना था? अगला बोल रहा है 120 न्यूटन। अब उन दोनों चार्जेस को उठाकर उसने क्या किया? किसी मीडियम में रख दिया। मीडियम रखा है, ना Q1 Q2 की वैल्यू चेंज किया, ना सेपरेशन चेंज किया, एज इट इज उठाकर उनको वाटर में रख दिया। बोल रहा है कि उनके बीच में फोर्स बताओ मुझे। तो सबसे पहले तो अपने मीडियम का फोर्स निकालना है, फिर यहां से अगेन आपके पास में प्रूव हो जाएगा कि मीडियम का फोर्स हमेशा ही वैक्यूम के फोर्स से क्या होता है? कम होता है। सॉल्यूशन, Fm इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो मीडियम का फोर्स
वाटर में रखा है, मीडियम है। एफ नॉट वैक्यूम का कितना है 120, एप्सिलॉन आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 80, कितना हुआ बेटा 1.5 न्यूटन। मीडियम में, वाटर में कितना लगा 1.5 न्यूटन लगा, वैक्यूम में कितना लग रहा था 120 न्यूटन लग रहा था। दिख रहा है क्या, वैक्यूम का फोर्स मीडियम के फोर्स से हमेशा ही ज्यादा होगा, या मैं उल्टा बोलूं, मीडियम का फोर्स हमेशा ही वैक्यूम के फोर्स से कम होगा, और मीडियम का फोर्स वैक्यूम के फोर्स से कितना कम हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन आर टाइम्स, 80 टाइम्स कम हो गया, इसीलिए कितना आ रहा है 1.5 न्यूटन आ रहा है। क्लियर। तो ये बहुत एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ था कि जो कूलॉम फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, द force acting between charges in medium decreases when the charge placed in the medium, then Coulomb force acting between charges decreases and it becomes epsilon r times less than the force of vacuum। वैक्यूम के फोर्स से epsilon r टाइम्स से कम हो जाते हैं, not sometimes, it is always। ये बहुत एक अच्छी सी बात अपने यहाँ पर डिस्कस की। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट हेडिंग इज units of k epsilon नॉट एंड चार्ज। इस सब में यूनिट्स आपको यहां पर बताने वाला। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, आपने कहा कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू अपन ने कितनी कही, के इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसके कोई ना कोई तो यूनिट भी तो होगी कि नहीं होगी। वी कैन फाइंड आउट द यूनिट, कैसे, के की यूनिट निकालनी है, के को एक साइड में रखोगे, बाकी की क्वांटिटीज को आप एक साइड में कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना आप यहाँ पर, एफ इंटू आर स्क्वायर के Q1 Q2। तो बेटा के कोस टू कितना मिला, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। हु इज द एफ, एफ इज द न्यूटन। But what is the unit of force, Newton? R. R is the separation. The unit of separation means distance. The unit of distance is meter. R square means meter square. Upon Q1 is the charge and Q2 is the charge. बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ के। अब अपन निकालते हैं किस यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की। बेटा के कोस टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई के। देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो मतलब एक नंबर है, इसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया 1/k। जो के की यूनिट है उसका उल्टा कर दो ना, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/k। के की क्या है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो कूलॉम स्क्वायर कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट क्या आ गई कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो ये रही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। नेक्स्ट चार्ज की। बेटा चार्ज जो है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो तो होती है कूलॉम। ठीक है बेटा, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलॉम ऑब्लिक ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलॉम और ESU और फ्रैंकलिन और बेटा यहां पर देखिए एक होती है इसकी EMU, सीजीएस यूनिट एक होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहां से सुनना बात को ध्यान से, 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU या स्टेट कूलॉम। एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम या कितने ESU होते हैं 3 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। क्लियर। द नेक्स्ट यूनिट इज फेरेड और 1 फेरेड इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। तो बेटा आपसे इससे पूछ ले कि चार्ज का सबसे बड़ी यूनिट कौन है, द बिगेस्ट यूनिट
of charge is the farad, and 1 farad is equals to 96500 coulomb. The smallest unit of charge is the ESU और स्टेट कूलम और द फ्रैंकलिन, और कितना होगा बेटा, ये रही आपके पास में यहां पर रिलेशन। बात समझ में आई आपको बेटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। किसकी बात करते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। अभी तक अपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, वहां से आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसके बाद में अपन मूव करेंगे टू द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द कूलॉम फोर्स की। सो द नेक्स्ट स्टडी इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स। Dear students, in class 11th we studied that there are two types of the quantity. One is the scalar and second is the vector. Scalar quantities do not require any direction while the vector quantities require the direction. ऐसा आपने पढ़ा है। And we all know that force is a vector quantity. Force is a vector quantity. So the force has both magnitude एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स के पास में डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें इसके पास में होती है। तो मैं वेक्टर फॉर्म में यहां से एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट में डेराइव करने वाला हूं, सुनिए आप। सपोज दैट आई हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाई R। ठीक है बेटा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि Q1 एंड Q2 हैव बोथ आर पॉजिटिव, दोनों में सेम साइन के ले रहा हूं। ठीक है, फिर मैं अपोजिट से भी बात करूंगा। Q1 Q2 बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं बेटा। अगर दोनों ही सेम के हो तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और सबको पता है कि रिपल्सन होने पर पास पास नहीं आते हैं, रिपल्सन की वजह से तो दूर दूर भागते हैं। अभी कैसे भागेंगे वो सुनो। रिपल्सन Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, देन देयर विल बी द रिपल्सन बिटवीन Q1 एंड Q2। रिपल्सन होगा Q1 और Q2 में। कैसे होगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। ये बोलेगा, Q1 बोलेगा Q2 से कि दूर चला जा, आई हेट, और Q2 भी Q1 को कहेगा तू मुझसे दूर चला जा, आई हेट यू, बिकॉज बोथ हैव द सेम साइंस। आई बात समझ में। तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो किधर बुलाएगा, पास में कि दूर, दूर इधर फेंकेगा। और Q2 भी Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फेंकेगा। फेंका बेटा, चल। सपोज दैट Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया और Q2 ने Q1 पर भी रिपल्सन फोर्स लगाया। Q1 ने जो Q2 पर फोर्स लगाया उसे आप कह दीजिए F21। F21 कौन है पता है क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अरे रिपल्सिव है ना यार, Q1 Q2 को इधर फेंक रहा है, मतलब Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है। तो ये इधर फोर्स किसने लगाया है, Q1 ने लगाया है। किस पर, Q2 पर। तो F21 कौन हो गया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके, इधर किसने लगाया, Q2 ने लगाया। किस पर लगाया, Q1 पर। से F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। बेटा F12 और F21 की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। फिजिक्स में जो डायरेक्शन बताने का काम करता है वो कौन करता है बेटा, यूनिट वेक्टर करता है। कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है। तो मुझे यहां पर दो यूनिट वेक्टर्स भी अज्यूम करने पड़ेंगे जो डायरेक्शन बताएं। सो लेट दैट देयर आर टू यूनिट वेक्टर्स R12 कैप एंड R21 कैप। R12 कैप और R21 कैप कौन है बेटा, यूनिट वेक्टर है। और ये R12 कैप कहां से कहां तक की डायरेक्शन बता रहा है, Q1 टू Q2, और R21 Q2 टू Q1। मैंने ऐसा अज्यूम किया है, आप चाहे तो R12 कैप जो यूनिट वेक्टर आपने अज्यूम किया वो मान सकते हैं कि Q2 से लेकर Q1 की जो डायरेक्शन है वो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, R12 कैप से करूंगा। लेकिन मैं क्या मान रहा हूं कि
Q1 से Q2, Q1 से Q2 की तरफ जब भी मुझे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस Q1 से Q2 की तरफ वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, R12 कैप की लूंगा। तो R12 कैप मेरा एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैं इस R12 कैप को किधर वाली डायरेक्शन के लिए यूज करना चाहूंगा, Q1 टू Q2 और Q2 टू Q1 की डायरेक्शन के लिए R21 कैप। आप मेरे से अपोजिट भी अज्यूम कर सकते हैं, द रिजल्ट विल बी द सेम। चले मान लिया आपने, चलिए ठीक है, तो F12 और F21 निकालें बेटा। F12 क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड K 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 2 4 जो भी पुट करोगे, Q2 जो भी कोई मैग्नीट्यूड होगा वैल्यू पुट करोगे, R वैल्यू पुट करोगे, आपके पास में एक वैल्यू निकल के आ जाएगी फोर्स की 2 इंटू 10⁸, 7 इंटू 10⁹, जो भी है निकल के आनी है, वैल्यूज पुट करने पर एक वैल्यू आपके पास में फोर्स की आएगी। इसका मतलब अभी तक तो आपके पास में फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसे क्या बनाओ आप, वेक्टर बना दो, एरो लगा दियो ऊपर, तो F12 क्या बन गया, वेक्टर बन गया। वेक्टर बन गया तो वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड प्लस क्या चाहिए, डायरेक्शन, साथ में क्या चाहिए आपको यहां पर, डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन, फिजिक्स में डायरेक्शन का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर। F12 किधर है बेटा, F12 किधर है, इधर। F12 किधर लग रहा है, इधर ही तो लग रहा है, Q2 टू Q1 की तरफ। Q2 टू Q1 की तरफ वाली डायरेक्शन कौन बता रहा है, Q2 टू Q1 वाली डायरेक्शन बता रहा है R21 कैप, ऐसा मैंने एज्यूम किया है, तो साथ में लगा दें R21 कैप, लगा दिया बेटा। सिमिलरली F21 वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे भी क्या बनाए आप, वेक्टर बनाए आप इसे भी, तो वेक्टर बनाते ही मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और डायरेक्शन F21 किधर है, F21 इधर है, Q1 से Q2 की तरफ है F21, और Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन बताने वाला मैं किसको काम में ले रहा हूं, R12 कैप को, यहां लगा दिया मैंने R12 कैप। क्या काम में लिया बेटा मैंने, R12 कैप आएगा, यहां क्या आएगा, R12 कैप, यहां क्या आएगा, R12 कैप। क्लियर, इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत बेटा, चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, ये R12 कैप और R21 कैप कौन है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और यूनिट वेक्टर कौन होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बेटा यहाँ पर 11th क्लास के थोड़े बहुत तो वेक्टर के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने ही चाहिए, अदरवाइज तो काम नहीं चल पाएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, कुछ स्टूडेंट्स की 11th वीक रह जाती है, तो 11th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर 12th में यूज होंगे, आई विल टेल एवरी कॉन्सेप्ट। क्लियर, R12 कैप और R21 कैप कौन होते हैं, क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। और बेटा यूनिट वेक्टर कौन होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। देखो मैंने कहा वेक्टर जो होता है, वेक्टर के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, अगर मैं मैग्नीट्यूड को 1 कर दूं, 1 इंटू डायरेक्शन, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। जो यूनिट वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसे वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया 1, तो सिर्फ क्या बचा उसके पास में, डायरेक्शन, डायरेक्शन बची। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मोड ऑफ कितना होगा, 1 होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल होगा। कितना होगा, मोड लगा रहे मतलब मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बेटा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट है। देखो Q1 से Q2 की तरफ ये है, Q2 टू Q1 ये है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप, डायरेक्शन कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या साइन ले लिया, माइनस साइन ले लिया। बेटा R12 कैप की जगह क्या पुट कर सकता हूं, R12 कैप की जगह माइनस R21 पुट कर सकता हूं क्या, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर और R12 कैप किस जगह माइनस R21, तो माइनस को मैं यहां ले लूं और लगा दूं R21 कैप। R12 कैप किस जगह मैंने क्या रख दिया माइनस R21 कैप रखा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया और इक्वेशन फर्स्ट क्या है F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर R21 कैप। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21 कैप। बेटा ध्यान से देखिए, इस माइनस को छोड़िए, इस माइनस को आप छोड़िए, इस माइनस को आप छोड़िए और ये किसके इक्वल आ रहा है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, ये किसके इक्वल है F12 वेक्टर के इक्वल है। तो मैं यहां से लिखूंगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। क्या कंक्लूजन निकला, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा एक्शन और रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये क्लास 11th में पढ़ा होगा। Q1 ने Q2 को रिपेल किया तो Q2 भी Q1 को क्या करेगा रिपेल करेगा। मतलब सुनो, Q1 ने Q2 पर की इधर एक्शन, तो Q2 Q1 पर क्या करेगा रिएक्शन। मीन्स अगर Q1 जितने फोर्स से Q2 पर फोर्स लगाएगा उतनी ही वैल्यू का Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। सो दिस फॉलोज एक्शन रिएक्शन। अरे दिख रहा है ना आपको माइनस, मतलब F21 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड कैसा इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट। और एक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल। तो किसको कर रहा है, एक्शन रिएक्शन को कर रहा है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक वैसे ही अगर एक फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर 20 न्यूटन रिपल्सन लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पर 20 न्यूटन रिपल्सन लगाएगा। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हुए मान लो, तो अगर ये पहले वाला दूसरे को 20 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरे वाला भी पहले वाले को 20 न्यूटन से ही अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। तो देखो इधर अगर दोनों अपोजिट, मतलब दोनों अगर सेम साइन है, Q1 और Q2 सेम साइन है, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा इधर F21, Q2 Q1 को रिपेल करेगा F12। अगर दोनों अपोजिट के हुए, ये Q1 और ये माइनस Q2, ठीक है बेटा, सेपरेटेड बाय आर, तो Q1 इस Q2 को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q2 भी Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो कौन हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो देख लो बेटा दोनों जगह है डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, यहां भी डायरेक्शन अपोजिट है, यहां भी डायरेक्शन अपोजिट ही है। तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, जो कूलॉम फोर्स होता है वो हमेशा एक सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बेटा, सेंट्रल। सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं, देखो ये जो F1 टू F21 है ये दोनों कहां पर लग रहे हैं, ये Q1 और ये Q2, ये सेपरेशन आ रहे हैं। ये कौन सी लाइन है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन है। अगर कोई फोर्स, अगर फोर्स दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लग रहा है, देखो इसको मैंने कहा F12 और इसको मैंने कहा F21, यहां पर जो F12 और F21 है कौन सी लाइन के अलोंग लग रहे हैं, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहे हैं। जो लाइन के अलोंग लगता है, मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो द सेंट्रल फोर्स, दिस इज ऑल्सो द सेंट्रल फोर्स। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो यहां पर ये डिस्कशन हुआ आपका किसका बेटा, कूलॉम फोर्स का। अगर दोनों सेम होंगे, सेम नेचर के होंगे, रिपल्सन होगा, दोनों अपोजिट के होंगे तो अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन और अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा रहना है, इक्वल रहना है। क्लियर बेटा। सो द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कूलॉम फोर्स विल बी डू
in the upcoming class. Till then, stay home, be safe, be healthy. Thank you.